So we'll start with circles. So circles is basically defined as locus of a moving point equidistant from a given fixed point. Now that's the definition of a circle. Locus का मतलब होता है path, path traced by a moving point. So let's say there's a point and there's a path. It is traced by a moving point. But the condition of this moving point is such that this point is at a fixed distance from a given point. So let us say this is the given point. ठीक है, ये हमारा given point है और यहां से एक फिक्स दूरी है, मान लेते हैं ये है r. ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये r. यहां से जो मूविंग पॉइंट है, अगर हम इसको मूव कराएंगे तो इसको हम पाथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकस या पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट. ठीक है, तो ये इसका नाम है लोकस का मतलब यही होता है, पाथ होता है. लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट. सो दिस इज आल्सो नोन एज सर्कमफ्रेंस. It is also known as periphery और it is known as a locus और a path. तो ये तीनों नाम इसी चीज के हैं. जो सेंटर जिसकी हम बात करते हैं that is known as a center of a circle. जो फिक्स डिस्टेंस की हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस. जो फिक्स डिस्टेंस की हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेडियस. A line joining the 2 points on the periphery of the circle is known as a chord. ठीक है, तो so let's say this becomes the center, this becomes the radius. So a line joining 2 points on the circle is known as a chord. Now if a line is coming from outside, right, and cutting 2 points, let's say this is known as a secant. इसको बोलते हैं secant. ठीक है, a line from an external point touching the circle at only one point is known as tangent. Okay, so these are certain points that we have to understand. Now, if you keep on extending this chord towards the center, right, you see the length of the chord keeps on increasing. And then when this chord passes through the center of the circle, the chord is longest possible chord. And then once again, the chord starts decreasing, right? So the longest possible chord is also known as, okay, the longest possible chord is also known as a diameter. Okay, now the diameter is also twice the length. Diameter is also twice the length. ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना. Then okay, then we have certain characteristics and certain more properties of a circle. Let's say, I mean, we just draw another circle. Let's say this is the circle. Okay, and if you mark 2 points on the circle, let's say AB, right? So this is just a part of this curvature. This is known as arc AB. ऐसे बोलते हैं. ठीक है. Now, since this is the smaller arc, it is also known as minor arc. इसको हम क्या बोलते हैं? Minor arc. The other arc is a major arc. So how do you know we are talking about major arc or minor arc? Now, when we are talking of major arc, generally it is used as 3 alphabets. तो जो major arc होता है, उसको हम 3 alphabet में use करते हैं. Minor arc को हमेशा हम 2 alphabets में use करते हैं. That is known as arc. There is something known as a measure of arc. You will see, you know, measure of arc AB. So what is a measure of arc AB? Measure of arc AB is the angle made by the radius from the point A to the point B. ये जो एंगल बनता है इसको हम मेजर ऑफ आर्क बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं. ये मेजर ऑफ आर्क है, थीटा. इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एंगल. इसको हम सेंट्रल एंगल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये सेंट्रल एंगल होता है. ठीक है, मेजर ऑफ आर्क, सेंट्रल एंगल. अच्छा, मेजर ऑफ मेजर आर्क कितना हो जाएगा ये बताओ? 360, बिकॉज टोटल डिग्री इन अ सेंटर इज ऑलवेज 360 डिग्री. तो ये थीटा है, तो ये कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा. सो मेजर ऑफ मेजर आर्क जो बनेगा वो 360 माइनस थीटा बनेगा. एंड ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है? ठीक है. अच्छा, चूंकि हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कुछ और पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर हम इसका एरियाज पेरीमीटर्स पढ़ते हैं. जब हम ये सेंट्रल एंगल डिफाइन करते हैं,
तो दिस विल डिवाइड द सर्कल इनटू टू पोर्शन. दिस पोर्शन, द येलो पोर्शन, इज नोन एज सेक्टर. ये इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर है ये. लेकिन ये कैसा सेक्टर है? ये माइनर सेक्टर है ये. ठीक है. और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी सेक्टर है. ये कैसा सेक्टर है? ये मेरा मेजर सेक्टर है. ये समझ में आ रहा है? माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. उसी तरीके से जब मेरे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं मेरे पास सर्कल है और मैंने एक कॉर्ड बनाई है, तो ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, विच इज नोन एज सेगमेंट. ठीक है. तो ये वाला जो येलो वाला है इसको हम बोलते हैं, कौन सा सेगमेंट है? ये माइनर सेगमेंट है. और ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे? मेजर. तो दो तरीके से सर्कल डिवाइड होता है, या तो जब सेंट्रल एंगल से डिवाइड करते हैं तो सेक्टर्स में डिवाइड होता है, और अगर कॉर्ड करते हैं तो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है. Of course, subsequently we are going to study perimeter of sector, segment, areas of sector and segment, but the definition for the time being is this. आ रही बात समझ में? Now there are certain properties which are associated with circle and lines. Lines and circle के साथ जो connected properties हैं वो हम कुछ properties पढ़ेंगे. ठीक है. वो properties हमें पता होनी चाहिए because उसके basis पे हमारे कुछ questions बनते हैं. तो first property है equal arcs. ओके. एक और एंगल पहले मैं बता देता हूं. ये सेंट्रल एंगल है. ठीक है. इस आर्क से हमने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो सेंट्रल एंगल है. इसी आर्क से अगर मैं पेरिफेरी पे कोई सर्कल लेंथ बनाता हूं, मान लेते हैं ये और ये, समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, हमें पता है ये ट्वाइस होता है ऊपर वाले एंगल का, अब उसको प्रूव भी करेंगे. बट दिस एंगल इज नोन एज, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल. जैसे ये सेंट्रल एंगल है इसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल. ये बात समझ में आ रही है? सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल. इंस्क्राइब्ड एंगल कहां पे होगा? एंगल हमेशा पेरिफेरी पे होगा. समझ में आ रहा है? इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा पेरिफेरी पे होगा और सेंट्रल एंगल हमेशा सेंटर पे होगा. ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है. ठीक है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है इक्वल आर्क्स विल सबटेंड इक्वल एंगल. इक्वल आर्क्स है, हाँ ये नाम है बस. ये सेंट्रल एंगल बोलेंगे और इसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे, बस ये नॉमेनक्लेचर है इनका. ठीक है. इक्वल आर्क्स विल सबटेंड इक्वल एंगल. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मान लेते हैं एक आर्क ए बी है. ठीक है. तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो लेट अस एज्यूम एक तो ये है, ये मान लेते हैं θ1 है मान लेते हैं. ठीक है. एक आर्क मान लेते हैं ये है मेरे पास, ये सी है और ये डी है. ठीक है. और हम इस आर्क सी डी से एक और एंगल सबटेंड करा लें, मान लेते हैं ये θ2 है. ठीक है. अगर हमें पता है कि ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के बराबर है, समझ में आ रहा है? ये वाली जो आर्क है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है या आइडेंटिकल है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. समझ में आ रहा है? इक्वल आर्क्स विल सबटेंड equal angle. Equal arcs will subtend equal angle. Now there is a certain assumption in this. What are the assumption? The assumption is we are talking in the same circle. समझ में आ रहा है? We are talking in the same circle. Although if the two circles are congruent, even then it is true. What does it mean? It means if I am having a circle like this and I am having a circle like this. Now these two circles are congruent. Same बनाया मैंने. अब यहां पे मान लेते हैं मेरे पास आर्क ए बी है ये, और मैंने इसका एक एंगल बनाया यहां पे. ठीक. ये एक इसका एंगल बना दिया, मान लो मैंने θ1, और यहां से मैंने एक दूसरा आर्क ले लिया, मान लेते हैं सी डी, और मैंने यहां से एक एंगल सबटेंड करा दिया ऐसे. Now if AB and CD are equal, for example, then this θ1 and θ2 will also be equal because the circles are congruent. एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो बात बराबर है. लेकिन
अगर मेरा सर्कल कॉन्ग्रुएंट ना होता, मान लेते हैं ये सर्कल होता और ये जो है मेरा आर्क CD है and it is subtending some angle. Now if I say AB is equal to CD, will these angles be equal? ये वाली लेंथ जो है इसके बराबर है मान लो, तो क्या इंस्क्राइब्ड एंगल बराबर होगा दोनों का? समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे सर्कल छोटा होता जाएगा उतनी ही लेंथ ज्यादा एंगल इंस्क्राइब करेगी। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा उतनी ही लेंथ पतला एंगल इंस्क्राइब करेगी। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि इक्वल आर्क्स विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पेरिफेरी, या फिर सीधा सीधा दे विल सबटेंड इक्वल एंगल, वी आर एज्यूमिंग या तो हम एक ही सर्कल की बात करें, उसी सर्कल में आर्क बराबर होनी चाहिए, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल में आर्क बराबर होनी चाहिए। अगर आर्क बराबर है लेकिन अलग अलग सर्कल्स हैं तो जो उसका सबटेंडेड एंगल होगा वो अलग अलग हो जाएगा। लॉजिक भी समझो आप। इमेजिन करो कि ये इतनी इतनी सी लेंथ है, कुछ एंगल बना रही है, अगर बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा तो क्या करेगा? वो छोटा सा एंगल इंस्क्राइब करेगी। नो मतलब? अच्छा, क्वेश्चन का आंसर है। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ये इक्वल एंगल सब्सक्राइब, ये बेसिक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसका डबल होगा। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं प्रूव करूंगा कि सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस इंस्क्राइब्ड एंगल। तो अगर इंस्क्राइब्ड एंगल इक्वल होगा तो उसका ट्वाइस भी इक्वल होगा। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल इक्वल होगा तो उसका ट्वाइस भी इक्वल होगा। उसका ट्वाइस इक्वल होगा मतलब सेंट्रल एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, इसी चीज को एक और तरीके से बोला जा सकता है, इक्वल आर्क्स विल हैव इक्वल कॉर्ड्स। मतलब क्या है? इक्वल आर्क्स will have equal chords। ठीक है, equal arcs will have equal chords। क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरी आर्क है AB। इस आर्क का जो कॉर्ड बनेगा, मान लेते हैं ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरे पास CD है। आपने कहा कि ये दोनों बराबर हैं। क्या बराबर है? AB की लेंथ, AB की लेंथ और CD की लेंथ अगर बराबर है तो AB जो कॉर्ड है इज इक्वल टू CD कॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? तो मतलब अगर हमारे पास कॉर्ड है, अगर वो कॉर्ड बराबर है तो जो जो उसमें कर्वेचर मिलेगा वो भी बराबर मिलेगा। अगर कर्वेचर बराबर है तो कॉर्ड भी बराबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ जी सर, क्लास तो मैं था कुछ 5:30 बजे मिला, आज लगातार ही क्लास है। हाँ हाँ जी, क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? इक्वल आर्क सेम होगी तो कॉर्ड इक्वल होंगी। इसी चीज को अलग तरीके से भी कहीं कहीं किताबों में लिख दिया जाएगा या क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन होगा दैट इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल। इस चीज को और कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल्स। मतलब अगर इस कॉर्ड का हम सब्सटेंशन माने, यानी कि जो आर्क है वही कॉर्ड है, कॉर्ड भी तो सबटेंड कर सकती है एंगल। दिस कॉर्ड विल सबटेंड विच एंगल? दिस एंगल। और ये ग्रीन वाली कॉर्ड कौन सा एंगल मान लो सबटेंड कर रही है? मान लो ये एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, चूंकि ये वाली लेंथ बराबर है, कॉर्ड बराबर है, तो जो सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल और ये जो सबटेंड कर रही है वाला एंगल, ये एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मोटी मोटी बात है, चूंकि कर्वेचर सेम है तो जो पोर्शन हम कट करके एंगल बनाएंगे वो भी बराबर होगा, और उस कर्वेचर के अंदर जो लेंथ आएगी वो भी बराबर होगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसको कई तरीके से पॉइंट में कहीं कहीं यूज करता रहेगा और हमें समझ में आना चाहिए वो कह क्या रहा है। आर्क, आर्क की जगह वो कॉर्ड यूज कर देगा। टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आर्क का मतलब वो दो पॉइंट जिसके अंदर कर्वेचर है, और कॉर्ड का मतलब वो जो पॉइंट जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन है। दैट्स ऑल। दे विल यूज इट इंटरचेंजेबली। उस सेंस में हमें ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है ये बात? समझ में आती है सभी को? है जी? क्या
नहीं समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, वो सेम सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए वैलिड है। अगर डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल हो जाएगा तो ये ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आता है स्टेटमेंट वो आता है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अभी हमने क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड विल सबटेंड इक्वल एंगल। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो समझने की बात है वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स equal chords are equidistant from center। और इसी का कॉन्वर्स होता है इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। ये इसका कॉन्वर्स बनेगा। क्या मतलब है मैं अभी आपको एक समझाता हूं, ठीक है। इसको मैं करके भी दिखा दूंगा एक बार, बट ऑफ कोर्स नोबडी इज रियली गोइंग टू आस्क अस प्रूफ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है। कि मान लेते हैं हमारे पास ये सर्कल है और मैंने इक्वल कॉर्ड्स की बात करी है। हाँ बोलो क्या हुआ, नेट चल गया। ओके सो हम बोल रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो मान लेते हैं मैंने एक कॉर्ड बनाई है और ये दोनों इक्वल है। मान लेते हैं ये ए बी है, ठीक है, और ये सी डी है। लेकिन इसको कराने से पहले, मुझे प्रूफ बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एक तो प्रॉपर्टी और है। इसका मतलब ये है, जिस इसका मतलब समझा देता हूं। मतलब ये है कि ये सेंटर है, ये कॉर्ड की दूरी सेंटर से बराबर है, क्योंकि कॉर्ड्स कैसी हैं, बराबर है। अब सेंटर से दूरी का बराबर का क्या मतलब होता है, व्हेन आई से लेट अस से दिस इज ए लाइन, राइट, एंड दिस इज ए पॉइंट। If I ask you what is the distance of this point from the line, or how far is the line from this point, so which distance are we talking about? We always talk about the shortest distance. Shortest distance will always be the perpendicular distance. आप imagine करो एक स्टिक ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट है, ये लाइन है। तो जब हम स्टिक को ऐसे 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 करते जाएंगे, स्टिक छोटी होती जाएगी, और फिर उधर लेके जाएंगे तो स्टिक बड़ी होती जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर हम सेंटर से ये दूरी नापेंगे ना, ये वाली दूरी, ये इसकी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस अगर हम नापेंगे, और यहां से अगर हम ये वाला डिस्टेंस नापेंगे, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ बराबर है। अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो सेंटर से दूरी बराबर होगी। कॉन्वर्स क्या है, अगर सेंटर से दूरी बराबर है ना, तो कॉर्ड की लेंथ बराबर पाएगी। इमेजिन करो एक सर्कल है ऐसे, और हमने उसमें कोई स्टिक डाल दी ऐसे। अगर हम स्टिक की पोजीशन मूव करेंगे कहीं से भी, बराबर स्टिक डालेंगे तो वो हमेशा सेंटर से आपको इक्वल डिस्टेंस पे दिखेगा। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, बट बिफोर दैट देयर इज अनदर प्रॉपर्टी which I need to explain to you. Perpendicular on the chord will bisect the chord. ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, perpendicular on the chord will bisect the chord. समझ में आ रहा है, perpendicular on the chord will bisect। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये मेरे पास एक कॉर्ड है, ये मेरे पास सेंटर है। जो मैं बता रहा हूं वो ये कि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, ऑब्वियसली दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आल्सो, विच दिस इज गिवन टू मी एज परपेंडिकुलर। तो ये कह रहा है ये क्या करेगा, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका कॉन्वर्स क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड will be perpendicular।
अब हम पहले वाला देख लेते हैं एक बार। पहले वाला क्या है कि हमने गिवन क्या है, परपेंडिकुलर है, हमें क्या प्रूव करना है, मान लो ओ है, ए है, बी है, हमें क्या गिवन है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू CB, यही बात है। हाउ डू वी प्रूव इट? लेट अस से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस है और ये भी क्या है, ठीक है। तो ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल का ये रेडियस हाई, ठीक है, सॉरी राइट एंगल ये 90 तो ये भी 90, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तीन साइड हो गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये वाला ट्राइंगल OCA एंड OCB इज कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो ये से क्या होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं हम, उससे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AC इज इक्वल टू CB। अगर AC इज इक्वल टू CB दैट मींस C इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। समझ में आ रही बात? अगर हम इसका कॉन्वर्स प्रूव करना चाहते हैं, कौन सा, ये वाला, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये लेंथ इसके गिवन है। समझ में आ रहा है? गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू CB। हमें पता है R इज इक्वल टू R और हमें पता है OC इज इक्वल टू OC। कॉमन साइड कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, S कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमें पता है कि एंगल ACO प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 और हमें यह भी पता है एंगल ACO प्लस और इज इक्वल टू एंगल OCB। इसका मतलब दोनों यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ACO इज इक्वल टू 90, ठीक है, और एंगल OCB इज ऑल्सो 90। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। दो एंगल बराबर है और दोनों का सम 180 है तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू वाई, सो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, ऑनलाइन मेकिंग सेंस? यश एंड रशिका? यस सर। कौन SSS कॉन्ग्रुएंसी लगने के बाद सारे एंगल सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो यही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुमने कॉन्ग्रुएंसी वाली शायद लगाई थी, नहीं लगाई थी? नहीं, बट समझ में आता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब चार थ्योरम्स होते हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। तो मेजरली हम ये RHS और SSS यूज करेंगे, ठीक है। So that is the proof, but of course nobody is really going to ask us, but just we need to understand in case कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ये सब कुछ यूज करना पड़ सकता है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर द कॉर्ड। अब अगर यहां पे हम आ जाते हैं इस वाले पे, यहां पे हमें क्या प्रूव करना था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू DC, तो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC। व्हाई डू वी नो हाफ? बिकॉज सेंटर से दूरी निकालनी है, दूरी का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये लेंथ इसके बराबर हो गई, ये लेंथ इसके बराबर हो गई। समझ में आ रहा है? और ये सारी लेंथ बराबर होगी एक दूसरे के। अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके क्या करते हैं, ये रेडियस बनाते हैं, मान लो ये रेडियस, उसी तरीके से ये रेडियस, कहना इसे ये मान लेते हैं, ये P है, ये Q है। ऑब्वियसली वी नो OQC इज इक्वल टू PB, हाफ ऑफ, ठीक है। एंगल O इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये मान लेते हैं O है, और OC इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडियस। तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी थ्योरम लगाई, RHS, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OQ की जो लेंथ है और OP की जो लेंथ है वो बराबर हो गई। सो OQ इज इक्वल टू OP बाय CPCT। इसको यही बोलते थे ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है और इसके, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब है अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होगी।
और अगर हम इसका कॉन्वर्स लें तो क्या होगा? कॉन्वर्स का क्या मतलब है? इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। अब अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हमें क्या गिवन है? OQ इज इक्वल टू OP, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। और ये तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे। और सिमिलरली हम OC इज इक्वल टू OB कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? रेडियस। तो ये तीनों मिला के क्या बनेगा मेरा? RHS। वापस से RHS बनेगा तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? QC इज इक्वल टू PB, और इसका ट्वाइस तो इसका भी ट्वाइस, इसका ट्वाइस क्या बनेगा? CD, और इसका ट्वाइस क्या बनेगा? AB। तो ये प्रूव हो गया कि अगर सेंटर से दूरी बराबर है तो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। देयर हैज बीन क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन एग्जाम कि उसमें एक नाला बह रहा है, उस नाले में पानी बह रहा है, उस पानी की जो हाइट है वो, क्योंकि वो नाला यानी पाइप है, वो ऐसा पाइप था, उस पाइप में पानी बह रहा है, तो पानी जो बहेगा वो इस तरीके से बहेगा। ये लेट अस से दिस इज द हाइट ऑफ पानी। तो वो पूछ रहा था कुछ, उसमें से डिस्टेंस पूछ रहा था, ऊपर से नीचे कितनी दूरी पे पानी बह रहा है। आई थिंक ही वाज आस्किंग दिस एंटायर हाइट। तो रेडियस प्लस ये एल्टीट्यूड निकालना था, सरकमफ्रेंस ऑफ द पाइप दिया हुआ था। तो बेसिकली इट वाज यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये रेडियस निकाल के ये हाइट निकालनी थी। ये हाइट निकलने के बाद ये रेडियस तो दिया ही हुआ था, तो रेडियस के साथ ये हाइट जोड़ के आंसर निकल जाता। तो इट वाज अ मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि एक पाइप है, पाइप में पानी जा रहा है, जो पानी की हाइट है वो इतनी है, तो बताओ ऊपर से कितनी दूरी पे बहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन उसने बनाया था। सो इट वाज यूजिंग बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, इट वाज यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया, and you needed to know that, I mean, you needed to know this Pythagoras theorem and similarity. So it was using all those concepts simultaneously. So this is the second most important, characteristics in circle. Circle and chords से जो related content है, एक बार तो फिलहाल वो ये है। इसके बाद हमारे पास secant से related कुछ चीजें आती हैं circles में, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल है और I have drawn two, secants from exterior point. This is point, this is A, this is B, this is C, this is D. Right. Then we will have PA into PB is equal to PC into PD. That is the result. PC into PD. ठीक है। Now, if you merge these 2 points, मान लेते हैं ये PCD को हमने मर्ज कर दिया, D और C को हमने सिंगल मर्ज करके T बना दिया मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, बिकॉज C और D मर्ज हो गया तो TT आ जाएगा। PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, वेयर PT इज अ टेंजेंट ऑब्वियसली। मतलब उस लाइन को मैं नीचे 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 लाता गया ऐसे टेढ़ा करके, मतलब समझ, खिसका के नीचे ले आए हम। ये हम अगर देखना चाहें, मे बी आई जस्ट ट्राई, मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया मान लो मैंने ऐसे, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल? PBC, PBC की बात करें, ठीक है, तो इसमें एंगल P है, तो हमने बात करी PBC, और अगर हम बात करें ADP की, दोनों ट्राइंगल्स की, तो जो एंगल P है, दोनों में एंगल P है, PCB में एंगल P और इसमें भी एंगल P, तो PP कॉमन हो गया, ठीक है। अब अगर हम PC की B की बात करते हैं
तो ये वाला एंगल इसके अंदर, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए सी इज आर्क विल सबटेंड इक्वल एंगल, तो कैन आई से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। यूजिंग दीज टू कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगेगी। अगर एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगेगी तो क्या होगा? साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अब साइड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है? मैंने कहा मान लो ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं, ऊपर वाला, तो पी के सामने कौन सी साइड है ऊपर वाले ट्राइंगल में? बीसी। पी के सामने कौन सी, इस वाले ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में कौन सी है? ऊपर वाले का मेरा मतलब है हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसमें कौन सी होगी? बीसी। और नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सा हो गया? एडी। दिस इज इक्वल टू, अब जो दो एंगल इक्वल थे, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये इक्वल था, इसके सामने कौन सी साइड है? पीसी। इसमें सामने कौन सी साइड है? एपी। अब चूंकि ऊपर वाले ट्राइंगल में अपन ने बीसी ले लिया और अपन ने ऊपर वाले ट्राइंगल में हमने बीसी ले लिया और पीसी ले लिया, तो क्या बच गया? एबी बच गया, पीबी सॉरी, ऊपर वाले ट्राइंगल में पीबी बच गया। नीचे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हमने एडी ले लिया, हमने एपी ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया? पीडी बच गया। ठीक है, अब अगर हम इसको यूज करें तो ये, अगर हम ये वाला यूज करें तो एपी यानी पीए इंटू पीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे बनेगा पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पीसी इंटू पीडी। ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको याद करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें आपको ये वाली लेंथ दे देगा या ये वाली दे देगा। अब ऑब्वियसली trying to figure out this similarity in the examination is going to be a difficult task. That is why we are expected to remember that PA into PB is equal to PC into PD. That's all. That's how we can understand this. आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ये एक्सटीरियर, ये है जब P मेरा एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा लॉजिक बनता है, इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस द प्रूफ, बट दैट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने सिमिलैरिटी भी किया हुआ है और हम PA इंटू पीबी रिजल्ट चाहते हैं कि हमें याद रहे, इसलिए हम इसको करना चाहते हैं। PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PC इंटू PD, एंड देन व्हेन C एंड T आर मर्जिंग, तो C और D रिप्लेस कर सकते हैं T से, तो PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर मैं ए बी को भी मर्ज कर दूं तो पीटी इंटू जो भी बनेगा पीएम बन जाएगा। ये अपने आप में एक रिजल्ट है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल। अभी हम उसको देखेंगे टेंजेंट को, बट यहीं से उसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्सटर्नली। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग इंटरनली। मान लो ये सर्कल है मेरे पास और ए बी सी डी, ठीक है। जो रिजल्ट पहले था पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, यही बनेगा। पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। इसमें भी वही प्रूव करना है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर है, ठीक है। एंड देन we may want to join this and make this triangle, ठीक है, and we may try to make this triangle, और फिर उसको वापस से सिमिलैरिटी प्रूव करके हम आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये इंटरनल इंटरसेक्ट करेगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ 3 दे देगा, ये बोलेगा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये x की वैल्यू बताओ। Now there is no other way you can really solve this question. The only way is you got to remember this, or once again you go ahead and try to figure out the similarities and then you'll get the relationship. But the better way of doing this question is remembering that PA into PB is equal to PC into PD, and you will get your answer using this chords. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? उसके अलावा ये कॉर्ड्स का और सीकेंट का जो रिलेशन था इंटरनल, वो हो गया। इसके बाद जो रिलेशनशिप हमारा बनता है वो टेंजेंट्स का आता है, सर्कल्स का और टेंजेंट्स का।
तो सर्कल और टेंजेंट्स में क्या रिश्तेदारी है, वो ये है कि मान लेते हैं हमारे पास ये सर्कल है एंड वी आर टेकिंग some external point and you are drawing a tangent like this. This is P A. ठीक है, this is a tangent, so PA is equal to PB. You see, if you look at this one, यहां हमने मर्ज कर दिया था, इसको भी मर्ज कर देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर होगा, तो अंडर रूट भी बराबर ही होगा, बिकॉज पॉजिटिव लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव का तो कोई चक्कर ही नहीं है. सो दैट मीन्स टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, tangents drawn from exterior points are equal. ठीक है, तो PA is equal to PB. अभी हम ऑब्वियसली ऊपर देखा है, लेकिन यहां पर भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे होगा. बट बिफोर दैट, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, देयर इज अनदर idea, there is another concept that we need to know. Radius drawn on the tangent will always be perpendicular. This is important. क्या important है? Radius drawn on tangent will be perpendicular. What does it really mean? It means कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक सर्कल है and let us say I have a tangent. Now I can draw a radius, कहीं से भी मैं radius बना सकता हूं, लेकिन if I draw a radius to this point of tangency, जो मेरा radius है वो कहां मैंने बनाया है? Point of tangency पे. तो ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा? ये 90 डिग्री. समझ में आ रहा है? Radius drawn on the tangent will always be perpendicular. Radius drawn on tangent will always be perpendicular. Now using this idea, we come to this proof. Let us say this is my center and I am drawing two radius to the tangent. तो ये मेरा radius है और यहां से ये भी मेरा radius है. Radius तो बराबर ही होगा, but using this concept, this will be 90 degree and this will also be 90 degree. Now if I were to join this line, let us say O, now we know R is equal to R radius. Angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. Why? Radius on tangent. And OP is equal to OP common. Which congruency theorem? Using RHS. Now if you are using RHS, then CPCT लगेगा. CPCT में क्या बनेगा? AP is equal to BP. ये proof है. ठीक है? So tangents drawn from an external point will always be equal. Tangents, हाँ SS भी बोल दो, RHS भी बोल दो. सॉरी, ये ना ये वाला ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो आप हाँ RH, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है ना? देन वी हैव टू सी, अभी हमने बोला था सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल, या इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज द half of central angle. How does it happen? We are just going to look at it also. ठीक है, तो let us say हम ये बोलना चाहते हैं कि ये मान लो मेरा सर्कल है and let us say this is my center and this is my central angle. Now let me say I draw a inscribed angle, let's say थोड़ा सा ठीक है. हमें प्रूव करना है कि जो सेंट्रल एंगल है वो इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल है. तो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली हमें पता है ये 2 थीटा है तो ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला 2 थीटा है. तो अब उसको करने के लिए मैं ये बताता हूं, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं. लेट अस से आई जॉइन दिस 2 लाइंस. अगर मैंने लाइन ज्वाइन करी तो क्या ये बाइसेक्ट करेगा इसको? कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है. टेढ़ा बनाऊं क्या और गंदा बनाना पड़ेगा थोड़ा फिगर?
उत्तर ये क्या हो गया? ओह, चल ये ठीक है, ऐसे बन सकता है। अब मान लो मैंने इसको ज्वाइन किया, मान लेते हैं ऐसे। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इट इज नॉट बाइसेक्टिंग, ये बड़ा है ये छोटा है ना। लेकिन अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं ए बी ओ पी, नाउ इफ यू लुक एट ट्राइंगल पी ओ ए, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, लेट अस से ए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम होना चाहिए। बट कैन आई से ये जो दोनों ये जो लेंथ है और ये दो लेंथ है बराबर होगी, क्यों? रेडियस है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये ए किसके बराबर होगा? 2 अल्फा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल्टरनेट, तो ये बनेगा 2 अल्फा। उसी लॉजिक से अगर ये वाला एंगल मान लो बीटा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? बीटा। मैं ट्राइंगल पी ओ बी की बात कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? तो ये कितना था? अल्फा, और ये कितना था? बीटा, और नीचे कितना बन गया टोटल? 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो एंगल ए पी बी है वो कितना है? अल्फा प्लस बीटा। और एंगल ए ओ बी है वो कितना है? 2 कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल, और इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ central angle. That is how we prove it basically. But this is an important result. We are going to use it in many places. ठीक है, समझ में आ रही बात? अब मान लेते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एक रैंडमली बना देता हूं वैसे समझाने के लिए कि भाई आपको समझ आए। मान लेते हैं मेरे पास सर्कल है, और मान लेते हैं ये मेरे पास एक और मान लेते हैं ये मेरे पास एक और ऐसे फिगर है। Let us say this angle is 80 degree. So what is this angle? जो पढ़ाया उसी में से पूछ रहा हूं, बट कुछ मैंने पहले पढ़ाया था, 1-2 क्लास पहले। ये आपको ऑब्वियसली आई मीन दिस इज सेंट्रल एंगल, बस ये ध्यान रखना, ये ओ है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। हाँ जी, बनेगी बात कुछ? कितना? क्यों? ये सेंट्रल एंगल है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल कितना बनेगा? 40। इफ यू लुक ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये कितना बनेगा? ये क्वेश्चन है, अपने आप में एग्जाम क्वेश्चन है, ये आसान है बट पता तो होना चाहिए ना। 2 प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, कौन सी? सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए था। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2-3 बार किया है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते समय भी किया है, ट्राइंगल पढ़ते समय भी किया है। जब मैं आपको ट्रेपीजियम बता रहा था, साइक्लिक ट्रेपीजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हर बार रिपीट किया हमने ये बात की
जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना सर्कल के अंदर 4 साइड फिगर, ध्यान रखना 99% केस में लगेगा क्या, ऑपोजिट का सम 180, 99% केसेस में लगेगा। ठीक है, जैसे एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री का, अगर सेमी सर्कल बना दिया सर्कल में तो समझ लो 90% चांस है कि वो 90 डिग्री वाला लगे। वैसे ही अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कल में, बहुत ज्यादा चांस है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यूज करना पड़ेगा आपको सवाल का जवाब निकालने के लिए। ठीक है, चलो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई वाज ट्राइंग टू से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर होता है। सो व्हाट इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। So what is alternate segment theorem? So let's say there's a circle, right? And let us say we have a tangent. Now this is a point of tangency, right? So from this point of tangency, let us say we draw a chord. Let's say this is the chord. This angle theta, that means the angle made by the chord and the tangent, will be the same as the angle inscribed by the chord at the periphery of the circle. So what it says is this angle will be theta. So angle made by the chord and the tangent will be same as the angle inscribed by the chord in the alternate segment. ठीक है, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हमारे पास ये कॉर्ड है, मान लेते हैं ए है, ये भी ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड 2 सेगमेंट में डिवाइड करिए, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे वाला सेगमेंट में एक थीटा जो बनेगा ना, तो यहां से तो ये भी तो बना सकते थे, ऐसे भी तो बना सकते थे, ये भी तो इंस्क्राइब्ड एंगल है, लेकिन इसमें नहीं कह रहा, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी जहां पे पहले थीटा है उसके दूसरे वाले सेगमेंट की बात कर रहा है, इसलिए हमें इसको ऐसे समझना है। ठीक है, तो एंगल मेड बाय द कॉर्ड विद द टेंजेंट will be same as the angle inscribed by the chord in the alternate segment. ये हमारा alternate segment theorem है, अपने आप में एक रिजल्ट है। कैसे आ रहा है मैं वो भी समझा देता हूं एक बार। Let us say this is my center of the circle. Let's say I drop a perpendicular. तो perpendicular कितना हो गया मेरा 90। ये perpendicular कितना हो गया 90। तो 90 में से थीटा माइनस किया तो ये कितना एंगल बचेगा है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से अगर हम ये वाला ड्रॉ कर देंगे इसको, कहना इसे ओ ए ओ बी रेडियस है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। अब इफ यू लुक एट ट्राइंगल ए ओ बी, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यही बनेगा। सो दिस इज 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा। तो सेंट्रल एंगल कितना हो गया 2 थीटा। अभी अभी हमने पूछा था अगर सेंट्रल एंगल ट्वाइस है तो इंस्क्राइब्ड एंगल कितना हो जाएगा थीटा। वही प्रूव करना था, ये थीटा है तो ये थीटा है। ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा थीटा बनता है। ठीक है, ओके। देन कमिंग बैक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ tangents, there are 2 or 3 more things about tangents जो हम अभी करना चाहते हैं। यहां तक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हैं सर्कल्स की। So some relationship between tangents, we have already seen about tangent that a tangent drawn from an exterior point will always be equal. 2 tangents drawn from an exterior point will always be equal. Now when you have, let us say, 2 circles, so let us say we are having 2 circles, let us say this is one of those circles and let us say this is another circle.
So there are two direct common tangents that can be drawn. So what is a direct common tangent? So this is known as direct common tangent. इसको direct common tangent बोलते हैं. तो अगर हमारे पास दो सर्कल है तो हम दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं. कहना इसे दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी. ये मान लेते हैं सेंटर 1 है और ये मान लेते हैं सेंटर 2 है. ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है यहां से लेके यहां तक. हाँ, ये ऊपर नीचे वाली सेम होगी ना. ओके, तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, इट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. What is R1? R1 is this R1. And what is R2? R2 is this R2. C1 C2 is the distance between the centers. ये जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, इसको C1 C2 बोलते हैं. ये C1 C2 है. मैं समझा देता हूं ये कैसे हो रहा है. ये समझ में आ रहा है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 बनेगा. चलेगा. ओके, R2 हमें बड़ा नजर आ रहा है. अगर मैं यहां से, ये 90 डिग्री है, एक लाइन ऐसे खींच देता हूं एकदम इसके पैरेलल. नहीं, ये R1 की लेंथ है ना, R1 की लेंथ के बराबर मैं यहां एक लेंथ खींच देता हूं ताकि ये अंदर वाली लेंथ क्या हो जाए, R1 हो जाए. समझ में आ रहा है. एक तरह का पैरेललोग्राम बन जाएगा. ये R1 है. तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी, ऊपर वाली लेंथ, ये वाली, ये बनेगी R2 माइनस R1 बनेगी. और ये 90 डिग्री है. कहना ही सही, अपने आप में ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो पॉइंट है, जैसे C1 C2 है, तो ये लेंथ C1 C2 हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया ना. ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गई ना, तो ये C1 C2 हो गया. राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. और बेस कितना है, ये लेंथ है, मान लेते हैं PQ है, ये लेंथ है प्लस PQ का स्क्वायर. समझ में आ रहा है. और हमें चाहिए PQ का स्क्वायर. PQ के स्क्वायर क्या बनेगा, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. चूंकि हमें PQ चाहिए तो हम PQ की वैल्यू करेंगे अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं. तो ये फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूला है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं. इसको हमने ड्रॉ किया, ये पैरेललोग्राम बना. तो ये जो लेंथ है ये R1 R1 आ गया, तो ऊपर वाली R2 माइनस R1 हो गया. राइट एंगल ट्राइंगल बना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. ऑब्वियसली please don't expect to do this in the examination. I would expect you to memorize this formula. The direct common tangent is C1 C2 is the distance between the centers minus R1 minus R2 का whole square. You will always get the answer. इसी क्लास में हो तुम? ओ तेरे की, जल्दी नहीं आ गया. दूसरी इसने बताया नहीं, वो बताएगा क्या, ग्रुप में मैसेज आएगा है? क्यों? अच्छा ठीक, चलो यहां तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम्स. इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सो वी विल हैव टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स and we also have two transverse common tangent. So what is a transverse common tangent? मान लेते हैं एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है and I draw a line like this. अब है ना ये पंगा, इसमें मेरे पास टूल नहीं है इसको नीचे करने का. हाँ, ठीक है.
और अब फिर इसमें पंगा होएगा। अरे चलो ठीक है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं अपन? 2। इनफाइनाइट नहीं नहीं, 2 ही बनेंगे। चलो जैसे अब इसको मान लेते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ बनेगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बनेगी वो अंडर रूट ऑफ C1 C2। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ C1 C2। ये C1 है, ये C2। C1 C2 माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। हाँ, C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होगा या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बड़ा होगा? फॉर्मूला दोनों लिखा हुआ है, आपको बताइए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला C1 C2 होल स्क्वायर माइनस, क्यों? हाँ, तो इसमें बड़ी चीज माइनस हो रही है, प्लस हो गया तो ओवरऑल कम बचेगी। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज स्मॉलर देन द डायरेक्ट। तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेंगे अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो, ठीक है। तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास 2 सर्कल्स हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, तो क्या बनेगा इसमें? 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे और 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगा। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से है ये वाला, देखो 2 ऐसे बने, मतलब 2 ऐसे बन जाएंगे, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, ये डायरेक्ट हो गया और ये ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक सर्कल ये है और मेरे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, तो इसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे और 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे बनेगा और ट्रांसवर्स नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं मोटा मोटा ऐसे, और ठीक है, और 0 ट्रांसवर्स। और अगर मेरे पास ऐसा है कि ऐसे एक सर्कल है, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रहा है? मतलब ऐसा है, ऐसा थका थका सा क्यों लग रहा है? एनीवे चलो, सो देयर इज ओनली 1 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एक ही बनेगा अगर वो टच कर रहा है एक इंटीरियर पॉइंट पे। और अगर मेरे पास ऐसा है कि एक सर्कल है और दूसरा सर्कल उसके अंदर है, टाइप कॉन्सेंट्रिक है मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो इसमें 0 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अच्छा मैं गलत लिख रहा हूं, एंड 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ टेंजेंट्स का जो रिलेशनशिप है सर्कल्स के साथ वो ऐसा ही है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए 2 इंडिपेंडेंट सर्कल्स हैं तो क्या होगा, टच कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, और अगर इंटरनली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो क्या होगा, और कॉन्सेंट्रिक होंगे अगर अंदर टच नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। ऑफ कोर्स दिस इज प्रीटी इजी बिकॉज यू कैन ऑलरेडी सी एंड यू कैन गेट डाउन टू दिस, राइट? So essentially this takes care of your properties of the circles and circles connected with lines. ठीक है, तो ये यहां तक हमें सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें समझ में आता है। क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हमें एरियाज ऑफ प्लेन फिगर दिया हुआ है, अच्छा मेंसुरेशन में भी वही रिपीट किया हुआ है, इसमें भी दिया 2 बार दिया हुआ है, कोई बात नहीं। Okay, I just want you to
quickly 5 minutes go through it, then I will see if I can take up the areas and perimeter of circles. क्योंकि हम circles कर रहे हैं तो I want to complete that. But before that I want you to just go through this peacefully. Try to absorb what I've tried to teach you. Just see if you have understood everything. In case there's a problem, let me know, and then we'll move to finding out perimeters and areas related to circles. हाँ बोलो, क्या रिपीट करना है ऋषिका, बताओ इसमें। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये एंगल्स बता दो जो आपने करे हैं, माइनस प्लस, ये वाला समझ नहीं आया। देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब होता है ये मेरा कॉर्ड है, ठीक है, और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और कॉर्ड एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को मान लो हमने थीटा बोला, ठीक है। ये एंगल क्या है? एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, एंड द कॉर्ड, थीटा। तो दिस कॉर्ड विल इंस्क्राइब दिस सेम एंगल थीटा हियर, ये हमें प्रूव करना था बस। तो मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सर्कल है, ये मेरे पास एक कॉर्ड है, टेंजेंट है, ये मेरे पास एक कॉर्ड है। तो ये टेंजेंट और कॉर्ड में कोई तो एंगल बनेगा, मान लेते हैं थीटा। तो ये जो कॉर्ड इंस्क्राइब करेगी ना, ये एंगल, ये थीटा होगा। पहले तो ये समझो, ये थ्योरम ये बोलती है। ये समझ में आ रहा है? बताओ, ये समझ में आ रहा है ऋषिका? यस सर। ठीक। अब वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेंटर से एक रेडियस बनाया यहाँ पे, किस पे? टेंजेंट पे। जैसे सेंटर से हमने क्या बनाया? रेडियस। तो ये कितना बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये टोटल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, बिकॉज टोटल ये 90 है और ये थीटा है। तो टोटल 90 है, उसमें से थीटा निकाल देंगे तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। वो ये रेड कलर में दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 90 में। तो जैसे 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों लेंथ बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो OB OA will be equal because they are radius. So if you look at this triangle OBA, ये ट्राइंगल देखो, तो आइसोसलिस ट्राइंगल बनेगा। ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? आइसोसलिस। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट इज अ आइसोसलिस ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये आइसोसलिस ट्राइंगल है, ये एंगल पता है, तो हम ये सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर सम कितना होता है? 180। तो अगर टोटल सम 180 में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल माइनस किया तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इनको 180 में से इसको माइनस करना है, तो क्या बनेगा? 2 थीटा। सो यू सी सेंट्रल एंगल हैपेंस टू बी 2 थीटा। ये कॉर्ड AB है, AB का सेंट्रल एंगल 2 थीटा, तो AB का इंस्क्राइब्ड एंगल थीटा। तो ये इसका मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये प्रूफ है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये याद रखना है कि ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? उसका ये है,
परपेंडिकुलर तो 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, 180 से माइनस करेंगे 2 थीटा, ये 2 थीटा तो ये थीटा। इसका प्रूफ हमने जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले किया था इसका प्रूफ। ये आया समझ में? ओके ठीक है, कर लिया रिवाइज सभी ने? चले आगे फिर इसके। ओके, नाउ वी विल डू एरियाज एंड पेरीमीटर्स एसोसिएटेड विद सर्कल। ठीक है, ओके। So now let us say we are having this circle. The perimeter of the circle, provided this is my radius, perimeter is given as 2 pi r. ये तो समझ में आता है सर्कल का पेरीमीटर, और एरिया is given as pi r square. Right, now this is what we know so far, but let us say this is my center and these are two radius. ये मेरा O A, ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा आर्क है AB. I want to find the length of arc AB. मुझे क्या निकालना है? AB की लेंथ निकालनी, प्रोवाइडेड इट इज मेकिंग एट एंगल ऑफ थीटा, सेंटर में थीटा बना रहा है। जब पूरा सर्कल का जो लेंथ है वो कितना है और पूरे सर्कल का एंगल कितना है, तो अगर 360 डिग्री की लेंथ 2 पाई आर है तो थीटा की लेंथ कितनी होगी निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बन जाएगी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है कैसे, हमें थीटा चाहिए, लेंथ यानी थीटा पोर्शन चाहिए, कितने में से चाहिए? 360 में से चाहिए। उसका क्या चाहिए? पेरीमीटर, तो 2 पाई आर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। समझ में आ रहा है? देखो पूरे सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री की लेंथ कितनी है? 2 पाई। हमें किसकी लेंथ चाहिए? सिर्फ थीटा, थीटा पोर्शन, बिकॉज दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो थीटा की लेंथ कितनी होगी? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको समझने का एक और तरीका है, ये एक तरीका है समझने का यूनिटरी मेथड। एक और तरीका है कि मुझे थीटा चाहिए कितने में से? 360 में से। मतलब मुझे थीटा का रिजल्ट चाहिए कितने में से? 360 में से। लेकिन क्या चाहिए? लेंथ। हमें थीटा वाले की लेंथ चाहिए, थीटा वाले की लेंथ चाहिए कितने में से? 360 में से। तो बस निकाल दिया इंटू 2 पाई आर। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? थीटा बाय 360 इंटू। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क चाहिए होती तो मान लो ये एक्स होता, लेंथ ऑफ ए एक्स भी चाहिए होता तो क्या करते आप? ये वाला कितना बनता? ये बनता 360 माइनस, तो 360 माइनस थीटा की लेंथ चाहिए कितने में से? 360 में से। क्या चाहिए? 2 पाई आर। एक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 2 पाई आर में से माइनस कर दो तो भी बात बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, बात वहीं आएगी। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर आप 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस थीटा बाई 360 बनेगा, 1 माइनस थीटा बाई 360 बनेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई आर इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 बनेगा। तो ये हम समझाने के लिए बढ़िया है, लेकिन एग्जाम में हमें इसको यूज नहीं करना है, हमें सीधा समझना है। हमें थीटा पोर्शन चाहिए कितने में से? 360 में से। और क्या चाहिए? लेंथ, तो इंटू 2 पाई आर कर दो। तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे इसका वो चाहिए, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। ये पूरे 360 डिग्री का एरिया कितना है बताओ?
पाई आर। अगर मुझे 360 डिग्री का एरिया चाहिए था तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, और मुझे कितने का चाहिए? थीटा का। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, कितना आएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। या फिर इसको ऐसे समझो, हमें थीटा चाहिए, थीटा का एरिया कितने में से? 360 में, पर चाहिए क्या? एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। या तो यूनिटरी मेथड मान लो इसको, और या ऐसे समझ लो, बात बराबर ही है। समझ में आ रहा है? थीटा कितने में से? 360, उसका क्या? एरिया, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आप बेटा बता, क्या नहीं समझ में आ रहा? उसको पूछ। उसी तरीके से अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए तो क्या बनेगा? तो ऊपर वाला चाहिए हमें, ये वाला चाहिए 360 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला एरिया चाहिए होगा हमें, तो ये बनेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360। इसका क्या चाहिए मुझे? एरिया, पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल सी बात है, पूरा हमें पता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें थीटा पोर्शन चाहिए, तो थीटा बाई 360 कर लिया। मतलब वो फ्रैक्शन चाहिए ना टोटल, मान लो 90 डिग्री होता तो 1/4 चाहिए, तो 90 अपॉन 360। ऐसे ही एरिया भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही लेंथ भी। तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया, माइनर आर्क का एरिया मेजर आर्क का एरिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। देन मान लेते हैं ये चीज है हमारे पास, और मैंने ये लेंथ बना दी। अब मेरे पास क्या बन गया? दो सेगमेंट बन गए। ये कौन सा सेगमेंट है मेरा? ये माइनर सेगमेंट है। और ऊपर वाला मेरा क्या बन गया? मेजर सेगमेंट बन गया। ठीक है, तो अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पेरीमीटर कौन सा बनेगा इसका, माइनर सेगमेंट का? ए बी आर्क की लेंथ चाहिए और ए बी कॉर्ड की लेंथ चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको रेड लाइन से बनाऊं तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए और मुझे इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? वो बाउंड्री जो एरिया को कवर करे। तो मुझे ए बी आर्क का लेंथ चाहिए और ए बी कॉर्ड का लेंथ चाहिए। तो ए बी आर्क का लेंथ तो अभी अभी अपन ने निकाला था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये मान लो आर है। अब अपने को क्या लेंथ चाहिए? ए बी। हमें क्या लेंथ चाहिए? ए बी। ठीक है, ए बी की लेंथ मैं एक बार डिराइव करके समझा देता हूं, फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि समझ में आ जाए मैं क्या बना रहा हूं। मान लेते हैं मेरा ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये लेंथ हमें पता है रेडियस है, ये रेडियस है, ये हमें पता है थीटा, ये चीज हमें पता है। अब मैं क्या, इसको मुझे लेंथ चाहिए ए बी की, और मुझे क्या पता है? सिर्फ आर पता है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऐसे। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90, ये 90, ये रेडियस, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी प्रूफ। ठीक ना, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ये भी लेंथ ए हो जाएगी। हमें किसकी लेंथ चाहिए? 2a। ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये थीटा है, ये चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पूरा थीटा है तो ये थीटा बाई 2 बनेगा, और ये भी थीटा बाई 2 बनेगा। ये समझ में आ रही बात? Perpendicular on an isosceles triangle will bisect the opposite side, so it is congruent using RHS congruency, so it becomes theta by 2. अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा होती है, ये साइन, इसकी वैल्यू साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑफ कोर्स हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में फिर से पढ़ेंगे, बट आई एम श्योर 8वीं 9वीं में सबने थोड़ी बहुत इतना तो पता होगा। साइन थीटा अपन याद करते थे ना, एचपी हप्पा डप्पा पता नहीं क्या ही करते थे ऐसे। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद वाला, मेरे से तो पंडित बद्री प्रसाद नहीं याद होता, वैसे सब पता होता है। साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड ए है
और हाइपोटेन्यूज r है, तो a बाय r हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, r साइन ऑफ थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, r साइन ऑफ थीटा बाई 2। बट हमें कितना चाहिए, r चाहिए 2r, हमें a चाहिए 2a चाहिए, 2 तो 2a, तो यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a, ab, तो ab की वैल्यू आ गई 2r साइन थीटा अपॉन 2। किताब में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा मिलेगा 2r साइन ऑफ थीटा अपॉन 2, थीटा यानी थीटा जो एंगल है उसका आधा। सो दिस विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि आर्क आएगा वो हमने पहले किया था, और कॉर्ड आएगा जो कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके डिराइव किया है, ये आप याद करोगे 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी जो एंगल थीटा है सेंट्रल एंगल उसका आधा है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है। ऐसे ही आप पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट बता सकते हो, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बनेगा, AXB प्लस AB, है ना। तो ये बनेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r प्लस 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये हमारा बनेगा मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, नो प्रॉब्लम्स, ओके। दो चीजें और हैं इसके अंदर, क्या ये वाला, इसमें कितने लोगों को सारी चीजें नहीं लग रही हैं, इसमें काफी कितनी चीजें नहीं लग रही हैं, कितने परसेंट चीजें वो नहीं लग रही है। बाकी सब पढ़ा है कहीं ना कहीं सबने, ट्रिग्नोमेट्री तो एक ही डेरिवेशन है। चलो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें क्या निकालना है, एरिया, यानी ये जो येलो वाला पोर्शन है ना उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, येलो वाला पोर्शन का एरिया निकाल। कैसे निकाल सकते हैं येलो वाले पोर्शन का एरिया, हाँ, तो अगर मैं माइनर सेक्टर में से, क्या करना है मुझे, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो काम चल जाएगा। मतलब आर्क का क्या है, निकाल तो दी, ये तो ऊपर गई, ये रही। ठीक है, ओके। अब माइनर सेक्टर का एरिया तो अभी अभी हमने निकाला था, क्या था बताओ, थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालें इसका, इस ट्राइंगल का, ये लेंथ नहीं पता ना, हाँ हाँ अभी निकाला है, वो साइन की टर्म्स में निकाला है, तो सीधा सीधा होता है, ये फॉर्मूला एरिया। अगर हमें दो साइड्स पता होती है ना ट्राइंगल की, तो हम हाफ इंटू द टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम करेंगे तो भी एरिया निकलेगा। ये मैं बताऊंगा अभी, एरिया ऑफ, जब एरियाज पढ़ाऊंगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ नेक्स्ट यही है, तो हाफ इंटू साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो आप फिलहाल ये याद कर लो, हाफ आर स्क्वायर यानी ये वाला आर इंटू ये वाला आर, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर साइन, ये क्या है, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, और ओवरऑल हमने क्या निकाला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एक तरीका ये है कि आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो तो भी बन जाएगा, या फिर ट्राइंगल प्लस मेजर सेक्टर कर दो तो भी काम चल जाएगा। आपको चाहिए तो ये क्या बन सकता है, मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो भी चलेगा। व्हाट इज मेजर सेक्टर, 360 माइनस थीटा ऑन 360 इंटू प्लस, ठीक है। तो ये मेरा एरिया ऑफ, ये माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो अगर मेजर सेक्टर के एरिया की बात करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर ये आपने कर दिया इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ गया। वो ये है कि मान लेते हैं मेरे पास ये मना नहीं कर रहा, ये कह रहा है आराम से करो सर, ये सर्कल है। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर आपको एंगल पता था, है ना, थीटा, तो हम उसकी टर्म्स में यूज कर रहे थे, थीटा की टर्म्स में। ये थीटा है, ठीक है, मतलब थीटा पता नहीं है आपको, एंगल नहीं पता, लेकिन आपको ये आर्क की लेंथ पता है एल, आर्क की लेंथ पता है एल, आपको ये रेडियस भी पता है आर। मुझे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, क्या हुआ, इतनी खुशी क्यों है, क्या आ रही है, अच्छा। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिया नहीं है, इन द सेंस L upon 2 into pi r square, L upon 2 pi,
हाँ भाई, बनी बात। LR/2 पाई कोई कहाँ था वो तेरा, बता तो तू पाई पाई रही थी 2 पाई, बट एनीवे कितना, कितने लोग आ गया, 1 2। हाँ भाई ऑनलाइन बच्चों आया, वाह वेरी गुड। और कोई आ गया? इसमें कुछ नहीं करना था, 2 चीजों, इसमें हमें क्या नहीं पता, मान लो हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू πr², यही है फॉर्मूला इसका। तो अब हमें थीटा नहीं पता, बेसिकली यही प्रॉब्लम है, लेकिन हमें क्या पता है, एल, और हमें एल का फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr, ये पता है हमें θ/। अब हमें ये चीज अननोन है, θ/360 या थीटा ही अननोन है, बट यहाँ पे हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसकी जगह यानी θ/360 इज इक्वल टू L/2πr कर दें, कर सकते हैं ना, θ/360 इक्वल टू L/2। तो अब इसकी जगह, यानी कि ये जो चीज है इसकी जगह अपन ये रिप्लेस कर सकते हैं, क्या बनेगा ये, L/2πr इंटू πr², यही करना है अपने को, विच इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई से पाई जाएगा, r से r जाएगा, क्या बचेगा, हाफ LR। अपने आप में ये भी एक फॉर्मूला होता है, पर मैं बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था खुद निकाल लो, बिकॉज वी डोंट नो थीटा। क्या हुआ, क्या हुआ, घर जा रहा था, सो कितने, 1 2 3 लोगों ने निकाला, इस पे गुस्सा आ गया था। ओके, so this will take care of our circles related all properties, right? Circles associated with chord, internal chord, external chords, circle connected with all kinds of tangents, and then we also did all the length of arcs, perimeters of arcs, perimeters of segments, areas of arcs, areas of segments. So we have covered this entire stuff. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? You are expected to read this, understand this. At the same time, I want you to do the first 4 chapters of arithmetic, and if you have questions, queries, we will kind of try to resolve it as soon as possible. ठीक है? So that is the agenda for next 2 to 3 days. Of course, now you have a test, right? Today you have a mock test. It's a full length mock test. Good. So नहीं सबके लिए, I'll tell you why. Even if you don't know, the target is to sit for that stipulated time, number 1. Second is not to give up, because you may find frustrating, because you may think ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ. So that first agenda is that you go through the entire paper during the stipulated time. Even if you don't know much, try solving either maths, whatever you know, or you should try to solve DI or LR, whatever you know. And you may also spend time in reading comprehension. So first is not leaving the paper before time. That is the first agenda.
target. The second target is to push yourself despite the fact you may not be knowing few things in that. So B1, B2, tomorrow, yesterday joining, nothing doing. Everybody is going to attempt that paper to full. Clear है? हाँ जी, ऑनलाइन की डोज तुमको पेपर कैसे मिलेगा? चलो, दैट रजनीश विल टेक केयर. आप बताओ, कुछ Hello. पूछना है? हाँ बोलो. सर ये ऑनलाइन होगा मॉक टेस्ट? ना, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, फिजिकल है. शीट पे ग्रुप में आएगी? अब देखते हैं, रजनीश may try to send you some sort of sheets, क्योंकि वो फिजिकल कॉपी पड़ी है हमारे पास. देखते हैं, we'll send you. Take a picture and send you. ठीक है? So I'll end it right now from here. No problems. My class.